Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video we are going to start with a new chapter, that is cylinder, cone and sphere. We are going to study the surface area and volume of these different shapes. So starting with the first shape, that is cylinder. A cylinder has uniform cross section. So basically a solid which has uniform cross section throughout is called a cylinder. Now uniform cross section. Now what is cross section? Okay, what does it mean? If you consider any wire, ठीक है, या फिर any pipe, तो what will happen, उसका cross section कैसे पता चलेगा? Now let's say this is a cylindrical surface and ये वाला जो part है, ठीक है, that is the cross section. Okay, so even if I break the cylinder, यहाँ पे जो दिख रहा है सर्कुलर सर्फेस, इवन इफ आई ब्रेक एंड यहाँ से अगर मैं देखूंगी, दैट इज गिविंग मी द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पाइप और वायर और एनी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट. नाउ क्रॉस सेक्शन, ओके, ठीक है, इट हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोला गया है. सिलेंडर हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. नाउ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, इसका जो रेडियस है या डायमीटर है, ओके, वो सेम रहेगा थ्रू आउट. ओके, सो इवन इफ आई ब्रेक दिस एंड अंदर के क्रॉस सेक्शन का मैं अगर रेडियस या डायमीटर फाइंड करूँ, इट इज़ गोइंग टू बी सेम एज दैट ओवर हियर. सो एनी पार्ट से इफ आई ब्रेक दैट सिलिंड्रिकल सर्फेस और दैट वायर और दैट पाइप, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वहाँ से अंदर से क्रॉस सेक्शन इफ आई मेजर, इट इज़ गोइंग टू बी सेम एज दैट ऑफ द बेस और द टॉप. ठीक है, सो सिलेंडर हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट. सो अगर मैं ये सिलेंडर लेती हूँ, यहाँ से अगर मैं उसका सर्कमफेरेंस फाइंड करूँ और यहाँ से भी फाइंड करूँ या यहाँ कहीं से भी फाइंड करूँ, इट इज़ गोइंग टू बी सेम. नाउ टू फाइंड ऑल दीज, ओके, आई नीड टू नो फ्यू डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर. नाउ व्हाट आर दीज डायमेंशंस? मुझे पता होना चाहिए सबसे पहले रेडियस, बिकॉज वी नो सर्कुलर सर्फेस आ रहा है तो रेडियस पता होना चाहिए. सो आई नीड टू नो द रेडियस. Alright, so if I know the radius of base or the top, I can easily find कि उसका perimeter क्या है, उसका area क्या है. Alright, now there is something else I need to know. Cylinder का height क्या है? Alright, so height is also important. So this is another dimension that we need to know. Alright, the height of the cylinder and the radius of the cylinder. This is enough to find all these. Now area of cross section, ये cross section जो है it is circular, तो इसका area क्या होगा, pi r square, because we know area of circle is pi r square. So area of cross section will be pi r square. Perimeter और circumference of cross section, ये सर्कुलर सर्फेस का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ओके, और पाई डी. ओके, थर्ड वन, कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया, नाउ सिलेंडर का 3 सर्फेसेस रहता है. एक कर्व्ड पार्ट रहता है, दूसरा बेस एंड टॉप रहता है जो फ्लैट सर्कुलर सर्फेसेस होते हैं. ओके, सो curved surface area is only this curved वाला part, this curved cylindrical part. उसका area क्या होगा, surface का area. We are talking only about the surface. So if you are talking only about the surface, only this part, circular part ही आएगा, surface का ही बात हो रहा है. So ये surface is circular. Circular, circle का क्या होता है, perimeter, it is 2 pi r. ये throughout 2 pi r है. So 2 pi r multiplied by this height हो जाएगा. Okay, so 2 pi r into the height of the cylinder. 2 pi r multiplied by the height of cylinder is going to give me this curved part का area. Okay, so I'll get this curved part का area by multiplying the circumference with the height. All right, total surface area. नाउ टोटल सर्फेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एक कर्व्ड पार्ट प्लस द सर्कुलर सर्फेसेस ऑन टॉप एंड बॉटम. सो 2 पाई आर एच हो जाएगा प्लस दिस इज सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर.
सो आई हैव अ सर्कल ओवर हियर एज वेल एज हियर, ठीक है। सो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका पाई आर स्क्वायर प्लस ये पाई आर स्क्वायर इज गोइंग टू गिव 2 पाई आर स्क्वायर. So flat surface is pi r square plus pi r square, that gives 2 pi r square, plus the circular surface का area is going to give 2 pi r h. So you add both of them. 2 pi r I can take common. तो 2 pi r common लिया, I am left with h plus r in the bracket. So its formula is 2 pi r h plus r. Coming to volume. Now volume means what? टोटली फिल कर दिया, ठीक है. व्हाट इज द कैपेसिटी? नाउ ये सॉलिड का कैपेसिटी कितना होगा? दैट इज एंटायरली फिलिंग दिस सॉलिड, टोटली कंप्लीटली फिलिंग दिस सॉलिड. नाउ इट इज सर्क्युलर सरफेस, ठीक है. तो सर्क्युलर सरफेस, इमेजिन आई एम एडिंग वाटर टू दिस सिलेंडर, ठीक है. एक सिलेंडर है, ओके, हॉलो सिलेंडर पड़ा है, लेट्स से एक बकेट है इन द शेप ऑफ सिलेंडर एंड आई एम एडिंग वाटर टू इट. तो क्या होते जाएगा? वाटर विल फॉल, ठीक है. मैंने थोड़ा सा पानी डाला तो इट इज़ गोइंग टू टेक दैट राउंड शेप. अगेन आई पुट सम वाटर, अगेन वो राउंड शेप, बट क्या होते जा रहा है? उसका हाइट बढ़ते जाएगा. सो आई कीप ऑन एडिंग एडिंग एडिंग. नाउ वो राउंड शेप जो ले रहा है, ओके, वो कंप्लीटली राउंड पार्ट फिल कर रहा है. नाउ दिस सर्क्युलर सरफेस जो बेस में है उसको टोटली फिल कर रहा है, मतलब ये एरिया हो गया ऑफ द सर्कल. नाउ एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर. वो पाई आर स्क्वायर भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते. एज आई कीप ऑन एडिंग वाटर, मैं उसको पूरा रिम तक भर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा? उसका हाइट तक भर दिया है मैंने. सो that whole area it is occupying multiplied by the height, okay. Now height is h for cylinder, so it is pi r square multiplied by the h, okay. Moving on to the next topic, that is hollow cylinder. We just studied cylinder, now coming to hollow cylinder. A pipe is a perfect example of hollow cylinder. Now hollow cylinder में क्या हो जाएगा? The inner part is empty, ठीक है, and there is inner surface as well as one outer surface. All right, as you see, ये blue वाला जो है that is inner surface and this red portion is outer surface. So a pipe is just like this. Now to find all these things we need to know some dimensions of the cylinder. So what are these dimensions? Firstly radius. cylinder के लिए radius पता होना चाहिए. राउंड सरफेस है, सर्कल आ रहा है, सर्कुलर पार्ट के लिए रेडियस पता होना चाहिए. बट इन दिस केस देर इज इनर सरफेस एज वेल एज आउटर सरफेस. सो इनर सरफेस का रेडियस अलग होगा, आउटर सरफेस का रेडियस अलग होगा. इनर सरफेस का रेडियस लेट अस कंसिडर एज स्मॉल आर, ठीक है, दैट इज इनर रेडियस. एंड आउटर सरफेस दैट इज रेड सरफेस जो दिख रहा है, उसका रेडियस वील कंसिडर कैपिटल आर, ओके, दैट इज आउटर रेडियस. एंड वन मोर थिंग, height of the cylinder, we need to know height क्या है cylinder का. For inner as well as outer surface, for both of them height is same. All right, so height of the hollow cylinder, that is what you are supposed to know. Now coming to thickness of wall or cylinder. Now ये thickness cylinder का कितना है ये हम लोग को पता करना है. How will you find that out? Now there is this inner circle as well as outer circle, ठीक है. आई एम ड्रॉइंग दिस अपर सर्फेस, प्रॉपर टॉप से कैसे दिखेगा ये वाला. नाउ ये जो इनर सरफेस है, ओके, एंड आउटर सरफेस है, दोनों का रेडियस अलग है. दिस इज कैपिटल आर, आउटर वन इज कैपिटल आर, ये आर है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज स्मॉल आर. सो इफ आई सबट्रैक्ट इसमें से ये वाला पार्ट, आई विल गेट दिस थिकनेस कितना है. ओके, आई वॉन्ट टू फाइंड ओनली दिस पार्ट, ये कितना है. सो ये फाइंड करने के लिए इफ आई सबट्रैक्ट इसमें से ये, आई विल गेट दिस पार्ट. सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर विल गिव मी द थिकनेस ऑफ द वॉल और सिलेंडर. दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू नो, ओनली द थिकनेस.
So capital R minus small r will give me the thickness of the wall of cylinder. Now area of cross section और base ring. मुझे area of cross section find करना है, but not whole cross section, only this ring वाला part. ठीक है, पूरा इसका area find करना है. Now this is very easy. इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे? ये होल सर्कल में से इतना सर्कल निकाल दे तो ये बच जाएगा. ये होल सर्कल का एरिया क्या है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर. उसमें से ये वाला पोर्शन निकालना है. सो दिस इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल है. So pi r square minus pi small r square is going to give me area of this cross section, that is base ring का बात हो रहा है. Okay, not the whole cross section. So it is pi r square minus pi small r square. Taking pi common, what will I get? I'm writing it over here. Pi capital R square minus small r square. That is going to be the formula of area of cross section of base ring. External curved surface area, CSA is curved surface area. External का फाइंड करना है. ये रेड वाले पोर्शन का curved surface area क्या गया? Only curved part. Now we had just studied कि curved surface area होता है 2 pi RH. Now इसका रेडियस क्या है outer surface का? कैपिटल R. So ये हो जाएगा 2 pi कैपिटल RH. ठीक है. एंड इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इंटरनल सिलेंडर जो दिख रहा है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर एच. ठीक है. नाउ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? नाउ पे अटेंशन इन दिस पार्ट. आउटर का कर्व्ड सरफेस आएगा, इनर का कर्व्ड सरफेस आएगा, मतलब ये दोनों तो आएगा ही आएगा. ठीक है. सो 2 pi RH plus 2 pi small RH प्लस किसका एरिया आएगा? दिस एरिया. ठीक है. हॉलो है, यहाँ पे एम्प्टी है, बट ये वाला पोर्शन का एरिया ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. सरफेस का बात कर रहे हैं हम लोग. इनर सरफेस है, आउटर सरफेस है, एंड टॉप एंड बॉटम में सर्फेसेस है. टॉप एंड बॉटम में व्हाट सर्फेसेस डू वी हैव? वी हैव सर्फेस लाइक दिस. ओके, लाइक दिस at top as well as bottom. Now इसका एरिया क्या मिला था हम लोग को बेस रिंग का? इट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. बट ये टॉप में भी है एंड बॉटम में भी है, तो दोनों ऐड करना पड़ेगा. सो ट्वाइस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो इट विल बी ट्वाइस पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. इफ आई टेक 2 पाई कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यू कैन कीप इट जस्ट लाइक दिस. ठीक है. नाउ कमिंग टू वॉल्यूम ऑफ मटीरियल. वॉल्यूम ऑफ मटीरियल मतलब क्या हो जाएगा? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ मटीरियल इज यूज टू मेक दिस पाइप वाला पोर्शन. ठीक है. दिस होल पोर्शन यहाँ से लेकर ये होल थिंग. ठीक है. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दिस पार्ट. सो ये होल पोर्शन, ये पाइप वाला आउट पूरा सरफेस थिकनेस ये जो दिख रहा है पूरा, उसका वॉल्यूम कितना होगा? नाउ दैट इज नथिंग बट ये जो एरिया माइनस ये एरिया किया, ये रिंग वाला पार्ट. ठीक है. ये रिंग वाला पार्ट पूरा टॉप टू बॉटम होगा, पूरे हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा. ठीक है. तो दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गोइंग टू गिव वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल. ठीक है. कितना मटीरियल यूज किया है टू फॉर्म दैट पाइप. सो ये इसका एरिया क्या है रिंग का? इट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर into the height of the cylinder is going to give me the volume of the material used to make that pipe. ठीक है. That is the volume of the material we are talking about. Now coming to capacity or volume of the solid, कितना fill कर सकता है.
नाउ फिल करने के लिए ऑब्वियसली दिस पार्ट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द मटीरियल, ठीक है, सॉलिड मटीरियल है. तो ऑब्वियसली इफ आई वांट टू फिल एनी लिक्विड और गैस इन दिस सिलेंडर, I can fill only in the inner portion of the cylinder. Now inner portion of the cylinder का वॉल्यूम क्या होगा? Just what we studied earlier. इसका रेडियस इज स्मॉल r, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h. Just what we did for the solid cylinder earlier.